Okay, Saifullah is saying QR code is the one which we scan it for internet access or something else. Good, good, good. Bilkul Saifullah. We are going to be discussing the same QR code today in our class. Just to give you all a quick recap, we started off with input-output devices and we discussed barcode scanners in very much great detail. I told you how you just need to know why we need an input device and the benefits across it and all that stuff. लेकिन there is one important point, and that is कि आपको no longer you need to know any sort of principles of operation, because that was in your older syllabus, the latest one, which is for the 2025 and also for the 2026 examinations. You just need to know what is an input device, including all of these. So we need to discuss all of these. We need to know कि यार क्या क्या चीजें हैं and why do we need them. सही है? So now we need to start off today with our class. That day on Saturday, we ended up the class using a great discussion on what do we call it, barcode scanners. आज जो हमने करना है, we need to discuss something known as QR codes. So you might have heard the word a lot of times. Maybe अगर आप लोग को याद हो, there was a time, I'm not sure if it's even available now, but there was this app known as Go Lootlo. And you used to go to restaurants and all that, and आप एक कोड होता था, you need to scan it. Okay, yeah, it's available, that's great. आप उसको स्कैन करते थे and what used to happen was कि आपको कोई डील मिल जाती थी या कोई इस तरह की चीज हो जाती थी. तो what the thing which you used to scan, this code box, that box something which was like this, उसके ऊपर black होता था, फिर यहाँ पे black होता था. बल्कि perhaps why not let me paste a picture. Just a moment. यहाँ पे कोई picture होगी मेरे पास and I will paste that. It will be way better this way. Control C, if I can directly paste it up here. Control V. Oh yes, we can. Great. So this thing is basically what we call as what? Your QR code. So let me just bring it up here. Let me erase this. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब ये तो Go Lootlo app के अंदर ही होता था ना कि you used to get discounts and everything. The main thing which we have to discuss is basically this very item. ये जो ये चीज होती है. This thing is known as your QR code. अब QR code बोलते किसको है? The word QR comes from quick response. So this QR is basically, this is quick response. So हम ये लिख लेते हैं, this is quick response. So ever if asked what's the full form of QR code, so it is quick response code. Okay, so quick response code इस specific चीज को बोलते हैं. हाँ, अब देखो, there is something जिसके अंदर एक तो ये कि we need to discuss how it works, and then there is something कि यार इसके पीछे mechanism क्या है, क्या किस तरह operate होती है. So you don't need to know the operation. सही है, ये तो मैंने आपको सिलेबस ही बता दिया कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन आपको generally पता होना चाहिए कि what is QR code. So now QR code is something which consists of block of small squares. So it is something that consists of small. यार देखो, अब ये आपने रट्टा किया, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि आपको रट्टा नहीं करना. सही है. दिस इज वन बिल्कुल वन पॉइंट जो कि जिसकी वजह से हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूँ कि यार गाइस डू हैव अ लुक एट सिलेबस, वेदर व्हाटएवर सब्जेक्ट दैट इज, व्हाटएवर सब्जेक्ट इट इज. once you finish a topic, yeah, once you start a chapter, try to look at the syllabus. It's really important. So it consists of small squares, and those squares are either of black color or white color. Like अब आप यहाँ पे ये जो white देख रहे हैं ना, it's not white to be honest. These are also colors that like it's यहाँ पे तो आपको transparent है तो इससे लग रहा है, but this is also some block. Okay, this might be some block. इसी तरह जितने white parts है, those are also some blocks. And ये जितने small squares है ना, these small squares are again referred to as pixels. Remember the word pixels we studied in chapter number 1? Same to same वही वाले pixels in small डब्बों को बोलते हैं. This black box, each of this small box is basically ये सारे squares है. So we have multiple squares combined. So like this might be a black square, then ये एक दूसरा black square and ये तीसरा black square है. So इसको अगर ये सारा black कर दे, then it becomes something like this big part. तो ये multiple squares को हमने एक साथ कर दिए and उससे हमारे पास ये इस तरह के formation बन गई. Now this thing is basically known as this. Each box is basically called as a pixel. अब क्या हुआ? पिक्सल का तो हमें पता लग गया. अब ये हर पिक्सल जो है ना, इट कैन होल्ड अप कैरेक्टर्स. सो इट कैन होल्ड अप कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि एट द एंड ये पिक्सल जो होता है, वी कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी. सो दिस वन ब्लैक बॉक्स माइट बी, दिस वन स्पेसिफिक बॉक्स माइट कंटेन समथिंग लाइक 0101. Maybe this might be 1248, right? So this is 1248, right? तो ये इसका मतलब है this might store 6. तो इस तरह each of this thing can store characters and values. How many characters can it store? It can store up to 4296 characters. This is not to be memorized. So yeah, again, not to be memorized.
दिस इज जस्ट फॉर योर ओन क्लैरिफिकेशन कि यार इतने ज्यादा वर्ड्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, बट इट इज नॉट समथिंग जो कि याद करना है। अब ये काम कैसे करते हैं? इट इज समथिंग जिसको यूज करने के लिए यू नीड अ कैमरा। किस तरह? यू नीड अ कैमरा टू स्कैन द QR कोड। अब आप लोग देख लो, nowadays even no, these pixels are basically converted into binary. Like ये each character है ना, each character is basically encoded in a square form. सही है? तो हम ये बोल देते हैं कि इस square form को जो इस तरह के 3 squares इकट्ठे हो जाते हैं, 3 square, तो this might denote something like an A, या इस तरह का we give it like some binary. Remember हमने ये बोला था ना कि अब this is different from the pixel which we were discussing in chapter number 1. Also this is not something जो कि आप लोग को यहाँ भी याद होना चाहिए, ये बुक के अंदर सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक गिवन है कि आपको ये पता हो कि इसको पिक्सल बोलते हैं, लेकिन एट द एंड इट इज समथिंग कि ये जितने पिक्सल्स होते हैं ना, इसको जब हम ये ऐप बनाते हैं, लाइक डेफिनेटली दिस QR कोड, दिस इज बेसिकली, it is very easy bilkul if you don't memorize the working and the process. And the funny part is that you don't have to memorize the process. और मैंने खुद से ये बात बोली भी नहीं है. This is not something which I am saying. This is something जो कि आपका examiner खुद बोल रहा है कि understand what is meant by an input device and why it is required. This is the latest one as compared to the older one where it said describe the principles of operation, how each device works. ये तो फिर भी बोल सकता अगर बोलना होता, लेकिन it did not say that. Now this thing is basically what this is your QR code. So the app which basically converts or creates a QR code, उसको जब हम बोलते हैं ना कि यार you need to create a QR code for some website like www.google.com. Okay. अब इसका अगर हम एक QR कोड बनाओ, अभी आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं QR कोड जनरेटर, इट माइट बी लाइक ओके गिव मी सम लिंक, गिव मी सम टेक्स्ट, गिव मी सम इमेज जिसको मैं QR कोड के अंदर कन्वर्ट करूं। तो वो जो ऐप जो कन्वर्ट करती है ना, इट बेसिकली मेक समथिंग लाइक दिस, जिसमें ईच बॉक्स को जब स्कैन किया जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी और पिक्सेल्स, तो वो एट द एंड सेम यही चीज को ही डिनोट करे। नाउ हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स इन अ मैनर कि आपको बस ये क्लियर सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग जो कि आपने याद करने, बट इट शुड बी समथिंग व्हिच शुड बी देयर इन योर माइंड। सो अब कैमरा होता है योर फोन, लाइक लेट्स से सैफुल्लाह गोस टू अ ट्रेन स्टेशन and he's like okay scan this QR code to get a discount. अब सैफुल्लाह क्या करेगा? सैफुल्लाह is going to take out his phone which has a camera, so your phone camera, okay, for in this instance, then he's going to scan the QR code. अब यहाँ पे कोई पोस्टर लगा होगा इस तरह जिसके ऊपर एक QR कोड होगा. Now what's going to happen? This might be the QR code. इस तरह then okay, these are random colors. It's going to scan it using his phone. Maybe this is his phone. So यहाँ से इसने scan कर दिया. Okay. Once the camera scans the QR code, what's going to happen? This QR code is basically converted into binary. So QR is converted into binary. So each of these black and white चीजें जो हमने जिस तरह कल उसने हमने पढ़ा है ना about a barcode scanner. So barcode में black and white lines are converted into binary. Just like that, your QR code is converted into binary. आपके binary के अंदर एक दफा ये conversion होगी ना कि QR code binary के अंदर हो गया, फिर your computer या phone या whatever CPU it is, it processes it. So like processes it का ये मतलब है कि अगर अब ये हमने इस तरह की है वेब पेज, हाँ अब प्रोसेस होने का ये मतलब है कि if I convert this google.com into this, maybe this is a QR code for, let's say for instance this is not, but for instance अगर ये google.com इस चीज के लिए होता, तो what's going to happen when it processes it, it's going to show the data which is in your QR code. So the data in the QR code is displayed. So now again, it's not relevantly required कि आपका हमेशा कोई Google page ही खुले. It might be, maybe it can be someone's number, it can be someone's maybe account details, it can be a picture. Like I guess if I'm not wrong, there was this example जिसमें होता है इस तरह था कि a pizza brand, what they did was they printed some fake notes जो कि बाहर से original cash लगते थे, and at the inside there was a QR code, and they like literally dropped it everywhere. So people used to take that cash. Definitely आप खुद सोचो 5,000 का नोट पड़ो तो you definitely have to take it, या आप साइड पे रख लेते हैं, and इसमें कुछ लोग definitely ऐसे भी होंगे, they might be like okay I got some free money, and वो उठा लेते. So just like that people उसको उठा रहे थे, and when you used to see that उसके अंदर वो कहते थे oh this is fake, but वो तो कोई QR कोड है, what is this QR code about? And they used to scan it, and वहाँ पे पिज्जा का वो खुल जाता था कि there is might be this new pizza shop and हम आपको 20% दे रहे. So as said by Ahmed, smart marketing. So QR code आपका यूज कहाँ पे होता है? Now we need to study this. Now अब आपसे एग्जामिनर अगर पूछे ना QR कोड कहाँ पे यूज हो सकता है, तो आपने ये चीजें बतानी है कि इनका QR का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, it is basically used for, यहाँ पे लिख देते हैं, used for advertising purposes.
जो मैंने अभी आपको बताया ये पिज्जा वाली एग्जांपल, इट इज एग्जैक्टली एडवर्टाइजिंग, राइट? क्या हुआ? द पिज्जा पर्सन, बेसिकली द पर्सन स्कैन्ड इट एंड ही वाज लाइक ओके मार्केटिंग, ओके आई गॉट टू नो देयर इज दिस पिज्जा पर्सन। सो आप इसको एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं या मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, एज सेड बाय सैफुल्लाह। बिल्कुल सैफुल्लाह इसी तरह। अब एडवर्टाइज और मार्केटिंग को आपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, scan this and you won't regret. Now if it is someone like Ahmed be like, yaar, how come is he saying you won't be regretting this? I need to check this out at every cost. So Ahmed might be like, camera nikalo, tongue, oh, pizza, and wo bhi extra large 1500 pe, itna sasta, I need to eat this at all cost. So Saifullah and Ahmed might be like, chalo yaar, treat mujhe de do, and they might eat a pizza. So the first purpose of your QR code is that it is basically used for advertising या marketing purpose. सही है। उसके बाद जो आपके इसका सेकंड यूज है ना, वो ये है कि इट इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडिंग एक्सेस। हाँ, KFC में हर जगह इस तरह यूज होता है। इट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वेबसाइट और अ कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये भी इसका दूसरा यूज है, ऑटोमेटिकली provides access to a website. हाँ बिल्कुल, ये भी अहमद सेट के स्कैन द QR कोड फॉर फ्री इंटरनेट एक्सेस। बिल्कुल, अब वो फ्री इंटरनेट एक्सेस भी माइट बी समथिंग लाइक कि अगर कोई वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे वो कोड ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली इंटरनेट आ जाएगा, राइट? सो सेम टू सेम वो पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही आ जाता है कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर या फिर हम बोले और सम वाईफाई कनेक्शंस और सम कनेक्शंस कर लेते हैं। like, आप लोग ये देखो, अब होता है इस तरह, when I don't have a password, right? Let's say for instance I don't have a password for the internet I have connected right now, and let's say Ahmed has already connected to that internet. अब इस तरह क्या होगा, मैं अहमद को बोलूंगा, अहमद bro can you share me the QR code for the Wi-Fi? तो आप जाते हैं settings के अंदर, you go to the Wi-Fi option and you have there is this option to see the QR code. आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके पास QR code आ जाता है, and then on the other phone you open up the camera app, आप उसको स्कैन कर दें, it automatically connects with that specific Wi-Fi connector या जो भी आपका नेटवर्क होता है। अब हुआ क्या है, आपने ऑटोमेटिकली आपने उसको एक्सेस दिया है टू योर कनेक्शन। जस्ट लाइक दैट इफ आई एम रनिंग एन एजेंसी और सम बिजनेस एंड आई एम लाइक कि यार मेरे एक 2-3 वेबसाइट्स है, वन वेबसाइट इज मे बी, इफ आई एम लाइक अ बिग कंपनी आई माइट बी लाइक दिस वन QR कोड, दिस माइट बी अ QR कोड, ओके दिस इज सम QR कोड, दिस इज फॉर माय प्रॉपर्टी बिजनेस, सही है। then I have this other QR code which might be like this, then this might be for my gaming business, and then I might have some third wala which might be for then for some food business of mine, okay? So I have these 3 QR codes. Now someone wants to say, yeah, I need it for what? I need it for maybe accessing your website. So rather than writing 3 very long websites के www.masscompanies.food.com या इस तरह के लंबे 3 लिखने के लिए, I included all these 3 QR codes. तो जिसने जो स्कैन करना है आप वो करेंगे एंड आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा टू माय वेबसाइट। जस्ट लाइक दैट अगर मैं कॉन्टैक्ट वाले उसमें करूं तो आई कैन ऑल्सो शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल। एंड जैसे सैफुल्लाह ने बोला कि वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर इजी पैसा पेमेंट्स। लाइक वो इजी पैसा का क्या हुआ, इजी पैसा के भी कनेक्शंस वाली बात ही आ गई कि लाइक इफ आई वांट टू ओपन सम ऐप और सेंड सम कैश मनी, तो ऑटोमेटिकली इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू दैट ऐप। सो हम यहाँ पे और ऐप का भी डाल देते हैं और सम एप्लीकेशन। तो अब इजी पैसा वाली बात जो आ गई है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट कि आपके कोई एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट भी आ जाए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 बेनिफिट्स तो हमने कर लिए। इसके बाद क्या हो गया, एक थर्ड चीज आ गई है विच इज लिटरली वेरी न्यू। मे बी पाकिस्तान में a lot of people might not be opting for that even now, but a lot of people internationally I have started using it, and it is basically storing boarding passes or airplane tickets. So your QR codes can also store electronically boarding passes या train tickets या ticket. तो हम बोल देते हैं store tickets/boarding passes. अब ये क्या होता है, when you go to, I'm not sure अगर आप लोगों में से कोई बाहर गया हुआ है, but when you go abroad to some other country, it is something like you first get your boarding pass, right? So you have that if you go to airport, आपके पास जब आप चेक इन करते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास वो काउंटर्स होते हैं, Qatar Airways, Emirates and all that. आप उसको अपने टिकट्स दिखाते, you share your details and they confirm it. Then they give you a boarding pass. So when you go into that final lounge,
देयर इज सम स्कैनर अप हियर जिसके ऊपर आपने बेसिकली बोर्डिंग पास को इस तरह रखना होता है, बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपने रखना होता है एंड द गेट्स गेट ओपन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये कि यू इफ लेट्स से फॉर इंस्टेंस यू डू बोर्डिंग ऑनलाइन, तो होता है ये कि आपके फोन के ऊपर ना, दिस माइट बी योर फोन, आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाता है, दिस माइट बी योर क्यूआर कोड, सही है। अब व्हेन यू गो थ्रू दिस काउंटर, यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, इट्स ऑल ऑटोमेटिक, दिस इज अ गेट, राइट। सो वो जहाँ पे आपने बारकोड स्कैनर के बारकोड बोलूं बोर्डिंग पास रखना होता है, उस जगह के ऊपर अगर आप अपने फोन को डायरेक्टली कर लेना तो गेट फिर भी खुल जाते हैं। नाउ व्हाट जस्ट हैपन, यू आर बेसिकली स्टोरिंग योर बोर्डिंग पासेस ऑल डिजिटली ऑनलाइन। तो ये एक थर्ड यूज हो गया आपका क्यूआर कोड का कि यू कैन स्टोर टिकट्स और बोर्डिंग पासेस ऑनलाइन डिजिटली विद योरसेल्फ, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसके अंदर डिजिटली करें। यार आई हैव बीन टू वन कंट्री, I have been to Azerbaijan for a tour and it was literally a very good experience. अच्छे दिन थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन ही है, but that was a good experience. So ये तीन ऐसे यूजेस है कि अगर आपको एग्जाम्पल में बोले कि क्यूआर कोड कहाँ यूज होता है, बाकू इज लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। या सो अब देखो आपके पास ये तीन आ गए ना, एग्जाम में आपको बोलेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ आई कैन यूज क्यूआर कोड, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार क्यूआर कोड इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडिंग एक्सेस, फॉर स्टोरिंग टिकट्स और बोर्डिंग पासेस डिजिटली। तो ये चीजें अब आपको याद होनी चाहिए। काम क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इट इज वर्किंग इन दिस मैनर, आपका ये प्रोसेस है, लेकिन दिस इज समथिंग जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज नॉट टू बी टेस्टेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया। Now the next thing which we need to study, we are done with what? We are already done with this. अब हमने इसके अंदर एक थोड़ी सी जो चीज है, हाँ ए बोर्डिंग पासेस, यार दिस डिपेंड्स, अगर ट्रेन सिस्टम में आप लोग बोर्डिंग का ले आते हो तो यू कैन ऑल्सो, बोर्डिंग पास बेसिकली मीन्स कि इफ यू बुक अ टिकट ऑनलाइन, इफ यू बुक अ टिकट ऑनलाइन, लाइक मैं बोल दूं कि यार आई नीड टू गो, नहीं ना, द बोर्डिंग पास इज अवेलेबल, इट्स नॉट समथिंग यू कैन परचेस ऑनलाइन वंस यू गेट द टिकट्स। अभी इस तरह हो रहे हैं जो बाहर फॉरेन वो एयरपोर्ट्स है ना, जो फॉरेन एयरपोर्ट्स हैं उसके अंदर यू कैन नॉट परचेस बोर्डिंग पास ऑनलाइन, लेकिन आप पहले से बोर्डिंग पास डिजिटली ले सकते हैं। तो उनकी स्पेसिफिक ऐप्स है, आप उधर जाते हैं, यू एंटर योर टिकट नंबर, योर डिटेल्स एंड दे गिव यू अ डिजिटल बोर्डिंग पास। तो फिर रादर देन गेटिंग द बोर्डिंग पास एट द एयरपोर्ट, आप डायरेक्टली जाते हैं, आप उधर वो इमिग्रेशन के बाद बोर्डिंग पास के ऊपर वो स्कैन करते हैं एंड आपको वो हो जाता है। तो यार जब आप जहाज में जाते हैं उस वक्त आपको उधर भी आप बोर्डिंग पास कर सकते हैं। इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान के अंदर, यस एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी नहीं है, इट्स लाइक होगा लेकिन लोग नहीं यूज करते। अभी इस तरह होता है कि जो बाहर एयरपोर्ट्स में, लाइक इवन व्हेन आई वाज लाइक, अब मैं अभी सोच, मेरे जहन में भी यही था कि ये मैं कहाँ पे करूँ, अभी याद आया कि जस्ट बिफोर बोर्डिंग माई एयरपोर्ट, या एयरपोर्ट बोलूं माई एयरप्लेन, जब मैं आखिरी, दिस वाज लाइक द एयरप्लेन, ओके दिस माइट बी एरोप्लेन, ओके एरोप्लेन, एयरप्लेन बोलो, एंड देन देयर इज दिस रूट जहां से आप जाते हैं जहाज के अंदर, राइट। यहाँ पे एक बंदा बैठा था, हु वाज लाइक आस्किंग कि यार अपने बोर्डिंग पासेस दिखाओ, एंड ही यूज्ड टू टच इट ऑन सम स्कैनर अप हियर। नाउ इफ आई हैड दैट डिजिटल सिस्टम, तो वो मैं अपना फोन इसको दिखाता, वो इसको कर देता, एंड ही वुड हैव बीन लाइक जाए सर आप जा सकते हैं। तो ये आपका जो ये वाला सिस्टम है अब ये डिजिटली भी आ चुका है, लोग अभी इतना यूज नहीं कर रहे, लेकिन इट इज समथिंग जो कि आ चुका है एंड यू कैन डू इट। सो अब हमारा क्यूआर कोड का हो गया। क्यूआर कोड के कोई जनरल बेनिफिट्स आप लोग की ये है कि फर्स्टली डेफिनेटली यू कैन स्टोर अ लॉट मोर डेटा, राइट। अगर मैं बोलूं कि बारकोड और उसके अंदर क्या डिफरेंस है, so the only difference between your barcode scanners and QR code is कि QR code allows you to store more data, सही है। so ये पॉइंट है, हम लिख लेते हैं, QR code allows you to store more data, से आपका एक ये पॉइंट आ गया, यू कैन स्टोर मोर डेटा। फिर उसके बगैर एक और बेनिफिट इसका आप लोग ये कह सकते हैं कि क्यूआर कोड्स में देयर इज लेस चांसेस ऑफ एरर्स, सही है। सो लेस चांसेस ऑफ एरर्स है, इट इज इजियर टू ट्रांसमिट डेटा, इट इज मोर सिक्योर। सो लाइक अगर मेरे पास डिजिटल वो हो, क्या कहते हैं, बोर्डिंग पास, तो अब मैं दुबई एयरपोर्ट पे, आई हैव द फोन विद मी, राइट। सो मुझसे कोई अगर या तो फोन चुरा लेगा एंड देन ही नीड्स टू क्रैक माय फोन पासवर्ड टू रिसीव माय बोर्डिंग पास। इफ आई हैव दैट फिजिकल बोर्डिंग पास, किसी ने चुरा लिया, फाड़ लिया, कोई सीन हो गया, काम हो गया। सो आई कैन से इट इज मोर सिक्योर, एंड व्हेन इट इज मोर सिक्योर डेफिनेटली इट मींस कि यार लेस चांसेस ऑफ एरर्स, एग्जैक्टली, इट इज मोर एफिशिएंट, इट टेक्स लेस टाइम। क्यों लेस टाइम? क्योंकि एक लाइन में मैं खड़ा होता हूँ बोर्डिंग पासिस के लिए लेने के लिए, उसके ऊपर मेरा अगर रश बहुत तो इट कैन लिटरली टेक मिनट्स टू आवर्स, इतना टाइम लग सकता है, राइट। अगर बहुत लंबी लाइन हो तो उम्रे वाले जो इस तरह लंबी लंबी लाइन होती है, अगर वो उस पर टाइम लग जाए तो कितना लग सकता है। अब आपने डिजिटल लिया, यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन, सो इट इज ऑल्सो मोर
it can, what do we call it, it is more efficient. Good point, Saifullah. Bilkul efficient is the perfect word. And QR code can store up to 3 KB data. Okay. Now that is something जो कि आपको ना पता नहीं होना चाहिए. Okay. It is something जो कि आपको पता नहीं होना चाहिए. मैंने ऊपर भी आपको एक बात बताई थी कि it can hold up to 4296 characters. लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको एग्जामिनर बोलेगा किधर मैंने लिखा था यार, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था. देखो मैंने यहाँ पे भी बोल दिया नॉट टू बी मेमोराइज. तो ये है कि ये क्यूआर कोड कैन स्टोर अप टू 3 KB डेटा, मे बी अगर नहीं जो आगे इट कैन स्टोर इवन मोर. लेकिन दिस इज समथिंग जो कि आपने याद नहीं करना. जो आपसे पूछा जा सकता है दैट इज ओनली हाउ एंड वेयर टू यूज क्यूआर कोड एंड व्हाई टू यूज क्यूआर कोड. तो ये सम बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स. सो आपको ये बेनिफिट्स पता होने चाहिए कि अगर वो बोले कि व्हाई शुड आई बी यूजिंग क्यूआर कोड, तो ये यार पाकिस्तान के अंदर कौन सी एयरलाइंस है यार, आई एम नॉट श्योर, बट इफ आई हैव टू प्रेफर अ लोकल एयरलाइन, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट एयर जिना, या पता नहीं कोई फ्लाई जिना है, कोई इस तरह का नाम है. सो आई गेस फ्लाई जिना इज गुड एज पर व्हाट आई हैव हर्ड. एंड अगर आपने इंटरनेशनली ट्रेवल करना है तो इंटरनेशनली इट हैज टू बी कतर एयरवेज एंड एमिरेट्स फॉर मी. Qatar and Emirates, बिल्कुल सैफुल्ला, सेम टू सेम Qatar and Emirates. I also like Turkish Airlines. Turkish Airlines भी बहुत अच्छे हैं. Turkish Airlines भी काफी अच्छे हैं. Oh wait, Ryan, is your father in PIA? Oh जबरदस्त. Great to know. ये तो बहुत जबरदस्त है. वाह. बस फिर इसका मतलब है यार मैंने कॉकपिट देखना है, मैंने नहीं देखा. When I was going to Baku, I even stayed back in the प्लेइंग जस्ट टू वेट अ बिट. एंड मैंने कहा आखिर में निकलूंगा वो एयर होस्टेस को मैं बोलूंगा प्लीज कैन आई सी दिस कॉकपिट. एंड उसमें मैंने बोला भी है, एंड शी वाज लाइक नो दैट्स नॉट पॉसिबल. एंड आई वाज लाइक यार फिर इतना इंतजार क्यों कर रहा है. बट जो भी हो, यस रेयान, प्लीज प्लान समथिंग फॉर अस, प्लीज रेयान. I need to see the cockpit. Please do something for me. Now, there are a few disadvantages, and the very big disadvantages, the biggest disadvantage, जो सबसे बड़ी disadvantage है, it is कि यार इसके ऊपर scams हो सकती है. Scams का ये मतलब है, like I just told you guys about that pizza वाली example, right? अब let's say, अब ये जो QR code है ना, उसके अंदर someone can also store some virus. Like आप उसको स्कैन करें एंड शायद इसी मोमेंट आपके लैपटॉप पे कोई लिंक ओपन हो जाए जिसके थ्रू आपके फोन में वायरस आ जाए. तो जो स्कैम्स वाली बात है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ हाई चांस फॉर स्कैम व्हिच मे मीन कि यार वायरस आ सकते हैं. So at this point, it is a contrary point to this benefit. It can be a bit less secure too in terms of स्कैम्स एंड वायरसेस. तो ये किसका डिसएडवांटेज है जो कि आपको पता होना चाहिए कि यार इस तरह के बड़े स्कैम्स हो सकते हैं. सिक्योरिटी रिस्क इसमें यही हो सकता है कि दे कैन एम्बेड सम वायरस और कोड समथिंग व्हिच कैन गिव एक्सेस टू हैकर्स फॉर योर डेटा एंड ऑल दैट. सही है. तो एक ये चीज है. एंड उसके बाद एक इस तरह के दीज न्यू वी हैव नाउ न्यू क्यूआर कोड्स, जो कि अगेन इट इज नॉट समथिंग जो कि आपके कोर्स में इतने एक्सप्लिसिटली है, लेकिन इट इज नोन एज समथिंग called as frame QR codes. It is there in the book, so discuss कर लेते हैं. Frame QR codes क्या होते हैं? ये देखो you want a free Corolla, इस तरह की जो चीजें होती है, बिल्कुल ये स्कैम्स, इनसे बचना चाहिए. Now frame QR codes क्या होते हैं? It allows advertisements. It allows addition of picture into the QR code, addition of a picture or a logo into the QR code for एडवर्टीजमेंट. अब जो हमने ऊपर वाले वो डिस्कस किए ना क्यूआर कोड, इफ आई गो बैक टू दैट पिक्चर जस्ट अ मोमेंट, इफ यू गाइस हैव अ लुक एट दिस, किधर गया. अब इसके अंदर इफ आई हैव लेट्स से फॉर इंस्टेंस अ कंपनी एंड आई हैव इट्स लोगो एज लाइक मे बी एम. ये जो एम अगर मैं यहाँ पे एक और लोगो इंक्लूड कर दूं ना इस पॉइंट के ऊपर, लाइक मे बी एक एम इंक्लूड कर दूं एंड देन यू हैव दिस क्यूआर कोड जिसके अंदर ये डब्बे शब्बे बने हो. तो दिस टाइप ऑफ जो आपके वो है ना क्यूआर कोड जिसके अंदर यू ऑल्सो इंक्लूड अ लोगो फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, for the purpose of advertisement, that is basically known as your frame QR codes. So frame quick response code. तो आपके frame QR codes का ये हो गया. Now we are done with QR codes. अब QR codes के बाद हमने क्या पढ़ना है? QR codes के बाद हमने पढ़ना है डिजिटल कैमरा. जी एक सेकंड. ये लो बेनिफिट्स भी हैं. मैं जल्दी से इसकी पिक्चर भी लेकर ग्रुप में भेज देता हूँ, बिकॉज फिर जिसने जितना इसके ऊपर टाइम लगाना है तो वो इस पे कर ले. कंट्रोल शिफ्ट 4 एंड लेट मी जस्ट टेक अ पिक्चर. एंड व्हाट्सएप ओपन किया. क्लासेस किधर गई यार? CS क्लासेस. आई डिड सेंड अ मैसेज राइट. CS क्लासेस.
यार सेकंड ड्रॉबैक इसमें यही हो सकता है ना, एक ड्रॉबैक आप स्कैम को कर लें, एंड देन द सेकंड ड्रॉबैक कैन बी कि इट इज लेस सिक्योर बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लोग इसके ऊपर वो कर सकते हैं, वायरसेस या मेलिशियस कोड इसके साथ इंक्लूड करके इम्बेड कर सकते हैं. सो लाइक द प्रॉपर वर्ड इज एम्बेडिंग. सो ये आपका लाइक देखो, एक तो स्कैम है ना, scam is a different thing and having virus या some malicious code is something else. So this can be point number 1 and this could be point number 2. लेकिन at the end you if there is one point तो आप उसमें दोनों को mix भी कर सकते हैं. सही है. है किस तरह हो सकता है कि यार देखो आप scam में उसे बोल दे कि भाई अब like what happened just before joining the class, one of our ambassadors from last year when I was the ambassador at Conceptuals, हुआ ये कि उसका फोन का नंबर व्हाट्सएप पे उसको किसी ने कॉल किया कि प्लीज गिव अस योर ओटीपी, इट इज फॉर सम पैकेज. उसने ओटीपी शायद उसकी अम्मी ने शेयर कर दिया एंड व्हाट हैपेंड इज कि उसके व्हाट्सएप हैक हो गया एंड नाउ दैट पर्सन इज मैसेजिंग लिटरली एवरीवन इन देयर कॉन्टेक्ट्स. और मुझे भी उसका मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम एंड अपेरेंटली दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर मनी. तो अब ये स्कैम है. दिस इज स्कैम. दिस इज वन डिसएडवांटेज. अब ये तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई क्यूआर कोड स्कैन करके आपके ओटीपी को फेच आउट कर ले या कोई इस तरह हो जाए तो स्कैम हो गया. वायरसेस इज समथिंग कि यार क्यूआर कोड को आप स्कैन करें, कोई वेबसाइट ओपन होती है जिसके थ्रू आपके फोन में वायरस आ जाए एंड ही कैन एक्सेस योर डेटा. दैट माइट बी अ सेकंड पॉइंट. सो ये 2 पॉइंट्स है जिसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं. अगर एक जगह आते तो आप एक पॉइंट में आ गए, लेकिन 2 पॉइंट्स. But if you explain both of these 2 points, how scam can have a disadvantage and how viruses can have a disadvantage, ये आपको चैप्टर 5 में अच्छे समझ आएगा. तो फिर आप वो अगर दोनों को अच्छे से डेवलप करके लिख दो तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं. अगर आपसे सिर्फ डिसएडवांटेज पूछे एंड आप उसमें एक में लिखे स्कैम एंड द अदर वन इज वायरस, तो ये आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब हमने क्यूआर कोड्स का ये तो कर लिया. नाउ वी हैव समथिंग नोन एज अ डिजिटल कैमरा. नाउ डिजिटल कैमरा का मैं आप लोग को बताना तो नहीं चाहिए कि व्हाट्स अ डिजिटल कैमरा. डेफिनेटली यू गाइस शुड नो, राइट? डिजिटल कैमरा क्या होता है? इट इज दैट कैमरा जिसके ऊपर आप पिक्चर लेते हैं. देयर आर गोइंग टू बी नो क्लासेस फॉर द क्लब्स, लेकिन क्लब्स में ये है कि अब यार कोई गेमिंग मैच है तो उसके लिए अगर कोई क्लास तो नहीं, कोई मीटिंग सेट की जाए या डिस्कॉर्ड के ऊपर कोई सीन इस तरह. बट वी डोंट वांट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लासेस फॉर द क्लब, सो डोंट वरी. ओके. फिर बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरह का 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप इसमें ये वाली बात लिख दो जो अहमद ने अभी बोला कि यू कैन सेंडर कैन एम्बेड मैलिशियस कोड विद इन द क्यूआर कोड व्हिच कैन लीड टू स्कैम्स. तो परफेक्ट, दिस इज आइडियल. अब व्हाई यूज अ डिजिटल कैमरा? इसमें क्या आप लोग के ख्याल में से होना चाहिए? डेफिनेटली टेक इमेजेस, राइट, स्टोर फोटोज, कैप्चर मेमोरीज. तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह कर ले, कैप्चर मेमोरीज 1 पॉइंट, आप दूसरा कर दे हाई क्वालिटी इमेजेस. यार इवन द फोन्स कैमरा दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिजिटल कैमरा. सही है, हाई क्वालिटी इमेजेस. सही है. फिर उसके बाद हम और क्या चीजें कर सकते हैं? वी माइट बी एबल टू स्टोर पिक्चर्स स्लैश फिल्म्स, पिक्चर स्लैश मूवीज. ये सारे इसकी यूजेस हैं डिजिटल कैमरा की. अब डिजिटल कैमरा की जो वर्किंग बुक के अंदर एग्जाम जो इंक्लूडेड है ना, अब बुक के अंदर क्या है? It is basically it works in a manner where you take a picture and there the light enters the lens, it hits a sensor and then that is converted into electric signals and फिर उसके बाद वो binary के form के अंदर आपके images formation होती है and all that. लेकिन none of that is in your course, so हम उसको नहीं पढ़ेंगे. It's useless, right? तो हमने उसको करने की जरूरत है ही नहीं. अब आपने सिर्फ ये समझना है कि यार what can a camera do? What can a camera do apart from taking pictures? What can a digital camera do? Just a moment. हाँ जी सैफुल्ला, आप कोई पॉइंट बताना चाह रहे हो? What can a camera do? Can recognize the Can it footprints. recognize? बिल्कुल, it can recognize different colors, right? It can recognize different views and all that. But what can a camera do apart from doing all this? अब ये जो आपने बोला it can recognize different colors and वगैरह वाली चीज, it comes under point number 2 क्योंकि high quality image है. high quality image है जैसे अहमद ने बोले some color spectrums and ये वाली चीजें, prism वाली कहानी, ये जो इस तरह की जिस which ensures कि high quality images हो, ये सारे point number 2 के अंदर है. इसकी जो वर्किंग है बुक के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग वर्किंग इंक्लूडेड है. आपके लेंस के ऊपर लगता है, प्रिज्म के ऊपर जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं, क्या कुछ होता है. नन ऑफ दैट इज इन कोर्स, तो मैं तो वो पढ़ाऊंगा ही नहीं. सही है. अब ये अहमद भाई आपने सीखा हुआ है तो दैट इज गुड टू नो. आपके अपने एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग होगी है तो गुड टू नो, लेकिन इट इज समथिंग जो टेस्ट नहीं होगा. जस्ट टू गिव यू गाइस अ क्विक ओवरव्यू कि होता बेसिकली क्या है. इट इज समथिंग जिसके अंदर देखो ये आपने याद नहीं करना.
ये याद नहीं करना। लेकिन होता है इस तरह कि आपके बाहर से रेज आती है, रेज, दैट रेज गेट्स ऑन टू योर कैमरा। कैमरा के अंदर देर आर बेसिकली स्टफ लाइक प्रिज्म्स, there is stuff like sensors. So you have sensors and prisms which basically convert that rays into electric signal. So आपके पास electric signals आ गए। जो electric signals है ना, electric signals को there is something जो कि बोलते हैं, इसको हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ADC बोलते हैं, सही है। ADC is basically एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो एडीसी कन्वर्टर क्या होता है, वो आपके जो नॉन बाइनरी वाली चीजें हैं ना, उसको बाइनरी फॉर्म में कर देते हैं। सो इट कन्वर्ट्स योर, यस बिल्कुल, इट इज टाइप ऑफ फिजिक्स स्टफ, ये अब सारे फिजिक्स ही है। सो इट कन्वर्ट्स दिस थिंग इनटू बाइनरी, एंड जब एक दफा वो बाइनरी के अंदर आ जाते हैं तो वो आपका क्या कहते हैं, उसके अंदर उस चीज के लिए आ जाते हैं कि आप उसको फाइल के तौर पे स्टोर कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। Acha, now good question. Ahmed said कि why is it a part of the book when it's not included in the syllabus? The thing is, Ahmed, कि book के अंदर they have included a lot of stuff just for the purpose of completing the chapter. सही है। Now they want to ensure कि यार बच्चा डिजिटल कैमरा पढ़ रहा है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि how does a digital camera work, just for his own clarification. आपके कोर्स के अंदर लाइक 2023 के बाद आप कोई भी पेपर खोल लो, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डिवाइसेस जिसको हम फिर पढ़ेंगे कि उसमें क्या डिफरेंसेस है, आपको किसी सॉफ्टवेयर या डिवाइस की वर्किंग का नहीं बताना। व्हाई इट्स नॉट इन द कोर्स? बुक के अंदर मोस्टली पार्ट्स में दे हैव ओवर एक्सप्लेन just so आपका चैप्टर कंप्लीट हो। नाउ हॉपिंग नंबर अगर आप लोग को याद है, चैप्टर 2 में आई डिस्कस समथिंग लाइक हॉपिंग नंबर। व्हाट इज दैट हॉपिंग नंबर? कि यार कितनी दफा दो राउटर्स या नोड्स के दरमियान वो करे टू इंश्योर कि अगर डेटा फाइल लूज हो गया, लॉस्ट हो गया, तो इट शुड बी डिलीटेड। अब व्हाई दैट वाज नॉट इन द कोर्स बट इट वाज इंक्लूडेड, ताकि चैप्टर कंप्लीटेड लगे, कि आपको समझ आए कि यार ओके ओके इसका ये मतलब है। सो जस्ट फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ द टॉपिक आप लोग के बुक के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो द बुक हैज नॉट बीन रिटन by the examiners, it has been written by some author. And also just to strong and emphasize more on my point, आपकी जो harder education की book है ना, इसकी एक workbook भी आती है। There is a workbook too. बिल्कुल इसी बंदों की ने एक वर्कबुक भी बनाई हुई है। अब वो जो वर्कबुक बनी हुई है ना, वर्कबुक, उस पे आप चैप्टर नंबर 3, आई हैव दैट वर्कबुक विद मी, लेट मी सी इफ आई हैव द चैप्टर नंबर 3 वाले सवालात, इट वुड बी इन माय ओल्डर लैपटॉप, मैं वो कॉपी करके आप लोग को भेज दूंगा। आप उनमें वो सारे क्वेश्चंस देखें ना, दोस क्वेश्चंस वर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ डिजिटल कैमरा। इट वाज मोर ऑफ लाइक suggest scenarios where digital camera can work. Why should I get a digital camera? Ahmed is planning on buying a digital camera. What other things can it do except for taking images? तो वो इस तरह के सवाल पूछ, सवालों में सही है, लेकिन जो कंटेंट पॉइंट्स वो डिस्कस करे that was only for the fact कि यार आपको चैप्टर फुली से समझ आए। तो there is a lot of useless stuff in the book. I have analyzed it myself when preparing for the exam. मैंने खुद बोला कि यार इसमें तो बहुत ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन it is only to ensure कि यार आपको कोर्स कंटेंट सही से समझ आए। अब एक बुक तो नहीं है ना, सीएस की मल्टीपल बुक्स है। देयर इज वन अदर बुक ग्रीन कलर वाली, शायद अगर वो यार they can ask you about benefits, they can ask you why should why should you get a digital camera, what can a camera do, इस तरह के सवाल। it can ask you anything except for how does a camera work। कैमरा की जो वर्किंग है वो नहीं पूछी जाएंगी, बाकी जो चीजें हैं वो आपसे पूछे। इट कैचेस थीव्स, नो दैट इज नॉट समथिंग जो कैमरा करता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम है। तो आपने थोड़ी देखो, अब ये जो आपने बोले ना, कैमरा इज वन पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम, सो यू नीड टू से दैट इज अ सिक्योरिटी सिस्टम। अब मैं वैसे ही कैमरा लगा लूं तो उससे तो चोर का नहीं पता लगेगा ना। आई नीड टू कनेक्ट दैट कैमरा टू व्हाट, to a security system. So security system will be an ideal word. अब using a camera in this scenario will maybe it might be something vague. तो मैंने बोला आप लोगों ने तो computer science वाली wording use करनी है, you need to be those school kiddos, तो आपने proper wording use करनी है। Now what can a camera do without taking pictures? जो थोड़ी सी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, it maybe it auto focuses on the image, auto focuses the image। फिर आपके पास इसमें एक चीज आ गई, यू कैन एडजस्ट क्या आप इसमें वो कर सकते हैं, एडजस्ट शटर स्पीड। अब आई एम नॉट अ कैमरा गाय सो आई डोंट नो व्हाट इज शटर स्पीड, लेकिन इट इज समथिंग रिलेटेड टू हाँ। अब जो अहमद तुमने बोले दैट इज समथिंग जो हमने पढ़ लिया ऊपर, हाई क्वालिटी इमेज, तो उसके बगैर क्या कर सकते हैं? तो उसके बगैर ये चीजें हो सकती है, शटर स्पीड। फिर उसके बगैर क्या हो सकता है, यू कैन एडजस्ट ब्राइटनेस, एडजस्ट brightness and brightness
और क्वालिटी अगर आपने करना चाहे तो ये एक चीज है। हाँ, जूम इन जूम आउट, गुड पॉइंट, यू कैन डू जूम इन जूम आउट जूम आउट। तो ये देखो आपके पास ये 4 चीजें हैं। नाउ वी आर डन विद डिजिटल कैमरा 2, ये आपको पता होना चाहिए डिजिटल कैमरा के बारे में। अब इसके बगैर दिस इज नॉट द ओनली थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके बगैर कैमरा कोई और काम भी कर सकता है तो आप उसका भी वो डाल सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड कि यार और क्या कुछ ये कर सकता है इसके बगैर। मे बी साइज ऑफ द इमेज को वो कर सकता है। उसके बगैर आप लोग अगर वैसे कभी देखे, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, व्हेन यू टेक अ पिक्चर आपकी आईज रेड हो जाती है। जब फ्लैश होती है ना, फ्लैश के बाद आपकी आईज रेड आ जाती है, तो वो जो रेड आई को रिमूव करने का फीचर है ये भी डिजिटल कैमरा के अंदर है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अब ये समझ आ गई इनपुट डिवाइस में जो डिजिटल कैमरा का है, बस ये आपको पता होना चाहिए जो हमने पढ़ा, बस ये चीज है और कोई चीज नहीं। अब उसके बाद हमारे पास जो एक चीज आती है ना, वो क्या है, दैट इज बेसिकली द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज वन जो कि आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा, विच इज नोन एज कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज दैट स्पेसिफिक डिवाइस using which you input, no worries, you input data into the computer. अब जो आपके अभी जहां पे भी, अगर if you are on a laptop or a computer, you might be having a keyboard in front of you. If you're writing these messages on a phone, जब आप click करते हैं, that typing वाला place opens up, that's a keyboard. So what's a keyboard? Keyboard is that specific input device, which basically is used to input data into the computer. What type of data? You can include characters. Characters में क्या कुछ आता है? It is A to Z. It is A to Z again. It is the special characters. Special characters say I always mean @ hashtag, comma, semicolon, colon, square brackets, parentheses, and all these stuff are basically आपके special characters. फिर आप इसके थ्रू और क्या चीजें कर सकते हैं? आप इसके numbers कर सकते हैं। बिल्कुल इसका जो main purpose है वो यही है कि writing के लिए numbers 1 to 9, बल्कि 0 to 9, सही है, 0 to 9। फिर उसके बगैर आपके पास ऑपरेटर्स आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड। हाउ इट वर्क्स इज अगेन नॉट इन द सिलेबस, लेकिन अगर आप लोग को ओवरऑल बताया जाए तो जैसे अहमद ने बोला है, when you press a button it is something like कि remember मैंने आप लोग को बताया था कि कंप्यूटर वर्क्स एज सर्किट्स। तो आपका ये जो बटन है ना, ये बटन, दिस बटन के नीचे एक ऑप्शन होता है इस तरह, एंड यहाँ पे आपके लैपटॉप की बेस होती है। तो होता है इस तरह, when you press this button, when you press the button on the keyboard, this converts into something like कि आपका ये इधर आ जाता है, and it converts and it touches basically itself with the base. जब वो बेस के साथ टच होता है उस मोमेंट क्या होता है, आपकी ये सर्किट कंप्लीट होता है, लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है। जब सर्किट पूरा हो जाता है, व्हाट हैपेंस इज कि आपकी एक बाइनरी वैल्यू जनरेट होती है, जैसे अहमद ने बोला है, एंड दिस बाइनरी वैल्यू इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू सम टेक्स्ट यूजिंग फ्रॉम दैट ऑस्की कैरेक्टर सेट टेबल। कैरेक्टर सेट, रिमेंबर, तो वही कैरेक्टर सेट को बाइनरी यूज करके उससे आपको इसको कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट बिकम्स इनटू सम लेटर। तो एट द एंड ऑल दीज ऑस्की वैल्यूज को जब आप कीबोर्ड आप इनपुट करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपकी कीबोर्ड के थ्रू होते हैं। दिस माइट बी अ वेरी बेसिक वर्किंग, लेकिन अगेन नॉट इन कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज नॉट इन द सिलेबस। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आप बटन प्रेस करोगे, सो ये बहुत ही वो चीज है। इंशाल्लाह A* हासिल करना, क्या इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन हासिल करना इज इजी। इट इज जस्ट यू नीड टू बी अ बिट मोर डेडिकेटेड देन द अदर किड्स। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार I got 70 out of 75 and I'm so happy, you might be like, yeah, why did I lose those 5 marks? So even if I have like 72 out of 75, the very first question in my mind should be, yeah, where did I lose those 3 marks? Oh, I lost it here. Oh, that's the point. Rather than getting happy, try to analyze your mistakes. Even if that's a 1 marker or 2 marker, you do that and inshallah you are going to be getting that distinction. This is the only way to get a distinction, whatever subject it is. You need to be one step ahead from the others. You need to have a look at your mistakes. Have a look at what the others are doing commonly, जो कि आपने commonly नहीं करना. You need to be a bit unique, which is basically, even अगर आप 99% भी आप score कर रहे हो, you should be asking, यार, why did I lose a mark? And you should ask your teacher sometimes कि यार आपने मेरे यहाँ पे mark काटे, क्यों काटे? सही है? In the book, it tells you how the keyboard works. It explains this thing. लेकिन again, book has explained a bit more. So you shall ignore it. बिल्कुल, it's not in the course. It's not in the course. You should ignore it. बस आप ignore ऐसे करो, रुको,
व्हेन रीडिंग द बुक, आप इसको रीड करो, जस्ट रीड इट, ताकि आपके जहन में थोड़ा आइडिया बने कि एग्जामिनर जो बुक जिसने बनाई है, ही इंक्लूडेड इट फॉर द फैक्ट कि यार आपको समझ आए हाउ कीबोर्ड वर्क्स। तो आप एक दफा रीड जरूर करो, जस्ट ताकि आपके जहन में हो कि यार ओके इट्स समथिंग लाइक बटन होगा, ये होगा वगैरह वगैरह चीजें। तो ये अब आपको याद नहीं करना, आपने मेमोराइज नहीं करना। हाँ, आप पढ़ लो जरूर, जब आप बुक रीडिंग कर रहे हो यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट, जस्ट रीड इट, ताकि आपको पता हो कि ओके इट इज समथिंग लाइक आई प्रेस अ बटन एंड द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड एंड इट बाइनरी वैल्यूज आर बीइंग फॉर्म्ड व्हिच आर बेसिकली यूजिंग द ASCII कैरेक्टर सेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट एंड देन इट इज बेसिकली शोन ऑन द स्क्रीन या व्हाटएवर। ये जो चीज है ये आप उधर वो कर लिया करो एवरी कॉस्ट। मैं बोलूंगा आप लोग ये जरूर बोल दिया करो इस तरह कि यार चलो हमें पता होना चाहिए कि चलता कैसे, लेकिन इट इज समथिंग जो कि आप लोग इस तरह वो ना करो कि याद करना है, मैंने याद करना है, याद ना किया तो क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें नहीं करनी, इसके लिए परेशान नहीं होना। सुनाओ, कीबोर्ड के अंदर कोई और चीज नहीं है। कीबोर्ड के अंदर सिर्फ ये है कि इट इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर, बस। ऑल द कंप्यूटर्स यूज, अच्छा। Now, the ASCII code was the older version, if you remember. Then I said there is something known as extended ASCII, which included some extra letter. And then we have Unicode, which is the most latest wala, jisme aap languages. Now tell me, Ahmed just sent a phrase in Urdu, right? So Ahmed ne kaise bheja hai? In ASCII ke andar to sirf English hai. So Ahmed basically used a Unicode. Maybe he used that translator app, or maybe वो iPhone के ऊपर आता है, आप English में लिखते हैं and it converts into Urdu. लेकिन all these latest devices basically use Unicode. लेकिन whether it's Unicode, it again comes in your character set. So हम Unicode को भी इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोग confuse ना हो, सही है? So आपकी एक ही बात है, आप जो character set वो करते तो वो इधर आ जाता है. Now there is one issue with keyboard. एक slide से issue आता है keyboard के साथ, and वो ये कि कीबोर्ड में एक सीन तो ये कि इट इज अ स्लो मेथड ऑफ डेटा एंट्री। तो अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि सम ड्रॉबैक, अगर मैं कोई बोलूं ड्रॉबैक, द ओनली ड्रॉबैक यू नीड टू नो अबाउट कीबोर्ड, द ओनली टू ड्रॉबैक्स, देयर आर बेसिकली टू। एक तो ये कि इट इज स्लो मेथड ऑफ डेटा इनपुट। लाइक व्हाई इज इट, व्हाट इज ASC2, वेयर डिड आई, अच्छा दिस इज ASCII। सैफुल्ला चैप्टर नंबर 1 में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जितने आपके कैरेक्टर्स वगैरह और ये चीजें होती है, दीज आर बेसिकली ASCII, ASCII। तो ये आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, आप वहां से कर लो, आपको फौरन क्लिक हो जाएगा। ASCII वाज दैट टेबल जिसके ऊपर, यार इसकी कोई डेफिनेशन इस तरह नहीं थी, इट वाज बेसिकली ASCII की जो डेफिनेशन थी, it was about how ASCII is basically that character encoding standard जिसके अंदर आपकी हर वैल्यू, हर लेटर की एक इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू। सो हमने ये बोला था ना कि A might be 0110, B might be 1100, जो इस तरह कंप्यूटर को जो बाइनरी फॉर्म में वो करता है वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली इन योर ASCII। तो अगर आपको वो नहीं है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के साथ, आप वो वाली जगह देख लेना। Yeah, that's also an input device. यार जो डिजिटल कीबोर्ड्स है, गुड क्वेश्चन बाय द वे अहमद, डिजिटल कीबोर्ड्स को आप लोग, it is a type of input device, लेकिन let me confirm it by the way. It's a very good question by Ahmed. Are digital keyboards input devices? To be very honest, it should be, क्योंकि yeah, it is an input device. क्यों? Because at the end, even when you try to type it on your phone, on your screen, even when you try to type it, आप कुछ डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं ना, राइट? द कंप्यूटर इज गेटिंग सम डेटा, सो एनीथिंग व्हिच अलाउज द यूजर टू गेट डेटा इनसाइड द कंप्यूटर, दैट इज बेसिकली एन इनपुट डिवाइस। सो वेदर दैट्स डिजिटली ऑन योर फोन या मे बी कनेक्टेड एक्सटर्नली, अगर आप डेटा कंप्यूटर के अंदर भिजवा रहे हो ना कि कंप्यूटर को कोई डेटा मिले, दैट इज एन इनपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ, या अब आप सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, हम सेंसर्स की बात करते हैं, सेंसर इज एन हार्डवेयर, इट इज एक्सटर्नल डिवाइस। लेकिन इफ आई यूज माय वेरी कैमरा, दिस कैमरा ऐप टू, एंड आई प्रोग्राम इट यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि यार इफ दे सी समवन तो फिर आपने एक अलार्म बजा देना है। नाउ आई डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेंसर विद मी, राइट? बट आई basically converted this camera into an input device. Why? Because this camera is basically used to basically आपकी जो कंप्यूटर है उसको डेटा मिल रहा है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस की एग्जांपल हो गई। सैफुल्ला, ऑल दीज डिवाइसेस जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। दिस कीबोर्ड इज एन हार्डवेयर डिवाइस, जो आपने कैमरा पढ़ा है दैट इज एन हार्डवेयर डिवाइस, जो हमने बारकोड स्कैनर पढ़ा है, QR कोड स्कैनर पढ़ा है, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है। इसके आगे हमने प्रिंटर और वो सारे कुछ भी पढ़ना है तो दोस आर आल्सो हार्डवेयर डिवाइसेस। सो दीज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, दीज आर बेसिकली द हार्डवेयर डिवाइसेस।
So इसमें कोई चीज आप जैसे कीबोर्ड है, दिस इज एन हार्डवेयर. Yeah, this chapter is about hardware. Now, keyboard is an hardware device. What type of hardware device it is? It is an input device. क्यों input device है? क्योंकि using a keyboard, I'm basically telling the computer some sort of data. So when I want to tell the computer something, whatever device I use, yeah, whatever software I use to tell the computer something, it is a type of input device. And when the computer wants to tell me something and वो मुझे कोई चीज बताना चाहता है, that's an output device. So बिल्कुल input and output devices, both of them, अगर उनको एक general category में मिलाओ ना, तो those are basically hardware. So hardware is basically further broken into input and output. बिल्कुल. Speaker is an output device. Why is it an output device? क्योंकि आप मुझे बताओ, स्पीकर से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हो? नहीं ना. आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो आवाज कंप्यूटर से बाहर हमें मिलती है ना. लाइक मैंने कोई चीज सुननी है तो मुझे कंप्यूटर से कुछ चीज, बिल्कुल रियान, बिल्कुल करेक्टली, द कंप्यूटर इज टेलिंग अस समथिंग, सो इट इज एन आउटपुट डिवाइस. क्योंकि कंप्यूटर से कोई चीज मुझे मिल रही है, तो जब कंप्यूटर से कोई चीज मुझे मिलती है, दैट इज बेसिकली आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस टाइप ऑफ, यू कैन से, अगर मैं सिंपल अल्फाज में सैफुल्लाह बताऊं, आउटपुट डिवाइस इज कंप्यूटर टू मी, कंप्यूटर टू डिवाइस ना बोलो, कंप्यूटर टू पर्सन और मी. इनपुट डिवाइस इज मी और पर्सन टू द कंप्यूटर. तो जब मैंने एज अ पर्सन, एज अ यूजर, व्हेन आई हैव टू टेल द कंप्यूटर समथिंग, दैट्स एन इनपुट डिवाइस. An output device is when the computer has to tell the person something. समझिए. Now speaker के context में क्या होता है? The computer is basically telling me something, right? कोई आवाज आ रही है तो वो आउटपुट डिवाइस है. माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है? As a person, when I'm speaking, that is basically being converted into the computer ज़बान, binary language. तो computer is getting it. That's an input device. बिल्कुल. अब जो वो इनपुट है सैफुल्लाह, जो माइक्रोफोन में क्या हो रहा है? I as the person. तो लेट मी राइट इट. अब यार आपको बेहतर समझ आएगा. जब पर्सन से आपके कंप्यूटर में जा रहा हो ना, पर्सन से कंप्यूटर में, दिस इज बेसिकली इनपुट. दिस इज इनपुट डिवाइस. क्योंकि हम कोई चीज बोल रहे हैं एंड वो कंप्यूटर उसको एनालाइज करे. मैं कुछ इसको बता रहा हूँ कंप्यूटर, मैं यहाँ पे बोलूँ हेलो, एंड यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो की वर्डिंग आ जाए, तो ये क्या हो रहा है? आई एम टेलिंग द कंप्यूटर समथिंग, राइट? तो ये पर्सन टू कंप्यूटर इनपुट होता है. जब कंप्यूटर टू पर्सन कोई बात हो रही है ना, कंप्यूटर टू पर्सन, जिसके अंदर लाइक अगर इसने, अब वीडियो मैंने प्ले की, वीडियो के अंदर हेलो है, तो वो हेलो मुझे यहाँ पे आवाज आए थ्रू सम स्पीकर, तो ये जो चीज होती है ना, दैट इज बेसिकली योर आउटपुट डिवाइस. सो दिस इज वेरी सिंपल अल्फाज में इनपुट एंड आउटपुट का डिफरेंस. अब इसका क्या ड्रॉबैक है? इट इज स्लो मेथड. क्यों स्लो है यार? Maybe I type fast, but maybe at the other end there is someone from the bio class who might be typing very, very slow. And if you look at your grandparents or those older people, they might be typing like this. Where is M dunda? Where is A dunda? तो ये जो तरीका है, it is very, very slow method. It is a slow method compared to some sensor. Like अगर मैं ये लिखूँ hello, अगर मैं ये लिखूँ हेलो, एंड देयर इज समवन हु माइट नॉट नो वेयर एच इज, वेयर ए इज, वेयर इज एल, तो उसका काफी टाइम लगेगा. वो एच ढूंढेगा, वो ई ढूंढेगा. या फिर जब हम लोग उर्दू का कीबोर्ड खोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम उर्दू का कीबोर्ड खोलते हैं एंड वी वांट टू टाइप समथिंग इन उर्दू, यार इतना टाइम लगता है, हमें पता ही नहीं है जीम किधर है, अलिफ किधर है, तो हमें वो ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. अब इट इज अ वेरी स्लो मेथड. लेकिन एट द अदर साइड, अगर आई हैव समथिंग लाइक अ माइक्रोफोन में मैं बोलूँ हेलो, फॉरन उधर कंप्यूटर ने हेलो लिख दिया, तो दैट्स वे फास्टर. तो इसका जो एक ड्रॉबैक है, इट इज अ स्लोअर मेथड. जो इसका एक दूसरा ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि इसके अंदर इंजरीज हो सकती है. व्हेन यू टाइप रिपीटेडली, बिल्कुल ऑडियो वाला इज फास्टर. व्हेन यू टाइप रिपीटेडली एन एरर अकर्स, इंजरी हो सकती है. देयर इज, लेट मी जस्ट मेक अ लाइन, देयर इज अ चांस फॉर इंजरीज, इंजरी. एंड उस इंजरी को क्या बोलते हैं? इट इज बेसिकली नोन एज RSI. बिल्कुल रिस्ट वाली कोई इंजरी हो जाती है, RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज को बोलती है. रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये हैंड्स में भी होती है, रिस्ट में भी होती है. कोई बंदे कॉमनली बार बार पूरा दिन टाइप कर रहा हो ना, तो उसके हैंड या उसके ऊपर इस तरह इंजरी हो सकती है, दर्द होने लग जाता है, और ये चीजें. नाउ RSI की फुल फॉर्म क्या है? इट इज बेसिकली रिपीटेटिव, बिल्कुल एग्जैक्टली, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी. ऐसी चीज है कि ये आपको पता होनी चाहिए कि यार कीबोर्ड यूज करते वक्त इस तरह के एक इशू कॉज हो सकता है, विच इज नोन एज RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी. अब दिस इज वन ड्रॉबैक जो कि आपको पता होना चाहिए, एक स्लो है और एक इस तरह का. और जब आप RSI किसी को हो जाता है ना, तो अगर आप कभी कभार, इसका एक हल भी है. हल क्या होता है? इसके सोल्यूशन बेसिकली इस तरह है कि
अब लेट मी टेक अ पिक्चर एंड मैं आपको वो दिखा देता हूँ. दिस इज बेसिकली सम लॉजिटेक का कीबोर्ड. लेट मी पेस्ट अप हियर. जब आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, तो द पीपल will recommend you, the doctors basically, they are going to be recommending you something like this keyboard. They will, oh yaar, सिर्फ ये picture वो करनी है. They will recommend a keyboard like this. अब आप कभी प्रोग्रामर्स को देखते हैं ना, प्रोग्रामर्स ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दिस. क्यों? उन्होंने बहुत ज्यादा कॉमनली टाइपिंग करनी होती है, तो इसके अंदर आपका हाथ बड़े मजे से रेस्ट भी करता है, स्ट्रेट नहीं रहता, इंजरी से प्रिवेंट करते हैं. इस तरह के जो कीबोर्ड होते हैं ना, दीज आर बेसिकली नोन एज एर्गोनॉमिक कीबोर्ड. अगेन नॉट समथिंग जो कि आप लोग को याद होनी चाहिए, लेकिन पता हो तो बेहतर है कि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड इज समथिंग, क्या कहते हैं, आप लोग का वो हो जाता है इस तरह. एंड भाई आप वो बोलो कि 14 मार्क के क्वेश्चन के बाद मेरा अभी हाथ को अभी देखो ना, तो जो एक्सटेंसिव राइटिंग के बाद आपका हाथ अंदर की तरफ नहीं हो जाता, वो मेरा अभी भी हो चुका है. सो डोंट टॉक अबाउट 14 मार्कर्स. बाय द वे, अपने जमाने में यार, it's not only 14 marker. I had like a very long journey with that. It was Pakistan study Islamia, then I had English, first language English, उसमें हाथ का बेड़ा गर्क हो गया था. And then AS में I had economics, तो उसके इतने लंबे. And then A2 में again economics. So like I know very much ये writing में जो वो वाला दर्द होता है. लेकिन remember, जब आपके हाथ में दर्द हो ना, अगेन दिस इज अ टिप फॉर योर इंग्लिश पेपर्स, जब आप इंग्लिश के पेपर्स दे रहे हो, आप राइटिंग करते जाए ना, आपके उसमें दर्द होने लग जाए ना कि यार अब मैं लिख नहीं सकता, सबसे फास्टर ये, इफ यू गाइस लुक एट द कैमरा राइट नाउ, इफ यू गाइस कैन सी, आप लोग उसमें एक काम किया करें, हाथ को पहले इस तरह करें, इवन इफ इट्स इन एग्जाम, आप इस तरह इसको वो करें, एंड जल्दी जल्दी आप हाथ को इस तरह ट्विस्ट बंद ओपन करें, एंड फिर आप पेन लें, एंड उसके ऊपर आप जल्दी जल्दी वो करें. No, it's not necessary now. It's not a Pakistan study paper by class, by the way. Again, it's not necessary to write 7 paragraphs. सही है? You can even write 4, 2, 3, 7, even 10, maybe 5. It's not necessary. You just have to complete the content. बहुत से टीचर ये गलत बताते हैं, 11 पैराग्राफ्स लिखने हैं 14 मार्क में, 7 लिखने हैं. इस तरह की कोई रूल उसमें मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके मार्किंग स्कीम के मुताबिक. लेकिन बैक टू वेयर वी वर. अब ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है? इट इज अ कीबोर्ड व्हिच इंश्योर्स कि आपकी रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी ना हो. एंड हैंड राइटिंग की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती भाई. इट्स जस्ट कि आप उसको पढ़ें और समझ आ रही हो ना, इजी सीन है यार. I was good with Pak study, and to be honest, I was firstly expecting a distinction in Pakistan study. I didn't get one, but I was expecting a distinction with Pakistan study. I loved history. Geography was a bit weak though, लेकिन I loved history, to be honest. History मेरी काफी अच्छी थी. I have an A star in Pakistan study. अयूब खान, मैंने भाई बड़े मजे से अयूब. अच्छा यार, अगर आप लोग का वो हो ना किसी भी सब्जेक्ट में, यू गाइज नीड हेल्प, जस्ट रीच आउट टू मी. मैं आपको उसकी स्पेसिफिक कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा. सही है? वो जो भी आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन रीच आउट टू मी लेटर ऑन. मैं आप लोग को बाद में भी टिप्स दे दूंगा. लेकिन अब कीबोर्ड का हमने कर लिया कि कीबोर्ड क्या होता है. अब हमारे अभी तक जितने इनपुट डिवाइसेस हो गए ना, उसके बाद एक चीज है ना, वो हम आखिरी चीज पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, बिकॉज आई स्टार्टेड अ बिट लेट एंड इट इज जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट. इट इज बेसिकली योर माइक्रोफोन. माइक्रोफोन किस चीज के लिए यूज होता है, आपने अभी ये समझना है. ये नहीं देखना कि माइक्रोफोन चलता किस तरह. अगर आपको मैं जल्दी वो बताऊं ना कि माइक्रोफोन चलता किस तरह, तो इट वर्क्स सम वे कि आपके साउंड वेव्स आते हैं, साउंड वेव्स, ओके, दीज आर साउंड वेव्स, एंड देन देयर इज समथिंग लाइक अ कोन. उस कोन को वो वाइब्रेट करता है, and that vibration basically is converted into electric signals, and that electric signals using your ADC is basically converted into binary. Guys, abhi idhar wo karo, please. History ko baad mein wo kar lena. And it is converted into binary, and then binary is basically stored in computer. So that this is basically how your microphone works. So waves होती है, कोन के साथ टच होती है, it vibrates, electric signals form होती है, electric signals are converted into binary, and वो फिर कंप्यूटर में स्टोर होते हैं. सही. अब ये जो चीज है, अगेन not in syllabus. NIS is basically not in syllabus. Okay, so I will be using NIS for not in syllabus. लेकिन बुक में है तो आपको पता होना चाहिए कि यार माइक्रोफोन चलता किस तरह. हम बात करते हैं हेलो, वो कौन जो हम जिस चीज में बात करते हैं ना, उसके अंदर कॉन्स लगे होते हैं, लाइक इस तरह की वो चीज होती है. माइक्रोफोन इस तरह होते हैं, राइट, इस तरह की चीज होती है, एंड यहाँ पे आपको वो माइक का गोल सी चीज लगी है. नाउ दिस इज दैट कोन. इस कोन के अंदर एक कॉइल लगा होता है. दैट कॉइल बेसिकली गेट्स वाइब्रेटेड, एंड सो जब वो वाइब्रेट होता है उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर्म होते हैं. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी यूजिंग एडीसी एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे चलता किस तरह, तो बस आपको पता हो कि यार वाइब्रेशन होती है. एक्सप्लेन करते हूँ सैफुल्लाह. अब यार देखो, ये अब आप लोग ने वो किया है,
याद किया तो दैट्स गुड फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगेन नॉट इन कोर्स। लेकिन स्टिल मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप लोग को ओवरव्यू पता हो तो बेहतर है, क्योंकि आप बुक में अगर कभी भी एग्जामिनर थोड़ी सी भी हिंट दे दी ना कि यार क्या हो, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोफोन चलते किस तरह। इट इज साउंड वेव्स, दिस इज साउंड वेव्स, लेट मी इरेज इट एंड राइट इट प्रॉपर्ली, क्योंकि आप लोगों को फिर बेहतर समझ आएगा। दिस इज बेसिकली साउंड वेव, मैं हेलो बोलता हूँ साउंड वेव्स है, तो इट गोज टू दिस कोन, इसके अंदर कॉइल लगे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। इट बेसिकली वाइब्रेट्स द कोन एंड द मैग्नेटिक कॉइल जो भी है, जब वो वाइब्रेट होती है देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स योर ईएमएफ और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड दैट बाइनरी इज बेसिकली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। सो दिस इज हाउ माइक्रोफोन वर्क्स। इसके बगैर इन योर बुक यू डोंट हैव एनीथिंग। आपको बस ये पता होना चाहिए कि माइक्रोफोन इज समथिंग विच बेसिकली कौन इस यार इस तरह की जो माइक्रोफोन के अंदर, लाइक आप स्कूल में अगर आप लोगों ने माइक्स देखे हो, माइक्स इस तरह होते हैं ना, ये इस तरह की चीज होती है, यहाँ पे वो गोल चीज लगी होती है। दिस थिंग इज बेसिकली दैट कोन, इट हैज अ शेप ऑफ कोन, लाइक ये इस तरह कोन की शेप में है ना, यहाँ पे आपको वो लगा होता है, ये कोन की शेप के अंदर होता है, इस वजह से इट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोन। या कोन बोल दिया आप, इसके अंदर ये भी बोल दिया, इसके अंदर कॉइल लगी होती है, तो यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल्स लगी होती है, तो आप कॉइल वाली बात भी कर लें इनसाइड। हाँ बिल्कुल, ये जो अभी जो रियान ने जो इमोजी भेजी है, बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इमोजी वाली चीज इज व्हाट इज नोन एज बेसिकली कोन। या फिर आप इस कोन के अंदर आपको कॉइल होता है विच बेसिकली वाइब्रेट होती है, जो इमोजी के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये चीज तो आपको समझ आ गई। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन काम इज टू कन्वर्ट साउंड waves into a form the computer understands. So this is the only thing which is done by your what do we call it, microphone. So it converts the sound waves into a form the computer can understand. अब इसके बगैर इसके अंदर कोई वो वाला सिनेरियो नहीं है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शायद वो आपको बोल दे कि where should I use a microphone? Ahmed is planning on getting two input device. हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं guys. Ahmed is planning on buying a new computer for gaming या for preparing for his for planning for taking online classes for instance. Okay, give us two input devices which Ahmed per computer might be requiring. तो अब उसमें आप क्या कुछ डाल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस ऑनलाइन क्लासेस के लिए? वन माइट बी अ कीबोर्ड। अब आगे वो पूछेगा व्हाई डू यू नीड इट, तो आप कीबोर्ड में लिख लो कि टू आस्क क्वेश्चंस या टू एक्नॉलेज स्टफ, फिर या फिर टू जॉइन द लिंक फ्रॉम गूगल क्रोम टू सर्च या टू सर्च फॉर कोर्स कंटेंट वगैरह। दूसरा आप माइक्रोफोन करते हो, व्हाई? टू इंटरैक्ट विद द टीचर, टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंटरैक्ट विद फेलो पीपल, सही है, टू स्पीक और टू आंसर क्वेश्चंस। अब ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि माइक्रोफोन कहाँ पे यूज होगा क्या नहीं। आपको इंशाल्लाह जब मैं इसके टॉपिकल्स की वो वर्कशीट कराऊंगा ना, आपको अच्छे से लेटेस्ट क्वेश्चंस में कराऊंगा उसमें। अब जो पेपर्स बाय टॉपिक वाले पीडीएफ जो मैंने आपको लिंक भेजी वो प्री 23 है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन हाउ डज अ प्रिंटर वर्क। You don't need to know how does a printer work now. You just need to know यार why should I get a printer या printer के कौन से forms है, उनमें क्या क्या difference है. Now this is what we have regarding microphones. It converts sound waves into a form जो कि computer understand करता है. बस अब एक और बात ये कि microphones can be connected externally, can be connected. बिल्कुल है सैफुल्लाह, ऐसा ही है। नहीं यार, आपका जो स्पेसिमन पेपर आया ना जो 2023 सिलेबस वाला है, वो आपका 2023 में है। जो लेटेस्ट वो है ना, लेट मी चेक इट, अगर 2026 में कोर्स सिलेबस आई गेस ना मेजरली चेंज नहीं हुआ, लेकिन देयर इज अ स्लाइड अपडेट, लेट मी सी, यहाँ पे कहीं पे स्पेसिमन वो होता था। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी आपका स्पेसिमन आया है या नहीं। नहीं, देखो आपका स्पेसिमन पेपर इज द सेम 2023 वाला, इट इज देयर। रुको मैं आप लोग को लिंक भेज देता हूँ। ये लिंक आपकी कैम्ब्रिज की ऑफिशियल लिंक है, सही, इन द चैट बॉक्स। इफ यू गाइस हैव अ लुक एट दिस, लेट मी इवन शेयर इट अप हियर, शेयर दिस टैब इंस्टेड। यू गाइस कैन हैव अ लुक एट दिस गाइस। आफ्टर दिस चैप्टर लेट्स सी, हम देखते हैं आगे, हम चैप्टर 4 5 6 जल्दी खत्म करें या पेपर 2 करते हैं, दैट इज समथिंग हमने देखना है। लेकिन दिस इज अ कैम्ब्रिज ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको लिमिटेड पास पेपर्स मिलते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर रिपोर्ट्स एंड स्पेसिमन पेपर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो आप देख लो, अभी जो आप 2026 में भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, इवन इन 2026 आपके स्पेसिमन पेपर्स यही 4 है।
सो इसका ये मतलब है कि जो आपका 2026 का सिलेबस है दैट इज वेरी मच ऑलमोस्ट सेम एज द 2023 वन। आप ऊपर जाएंगे, इसमें आप सिलेबस ओवरव्यू में जाएंगे। अगर आप ये वेबसाइट खोलते हैं ना, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वो चाहिए, आप सिलेबस ओवरव्यू में आए, आप लोड हो जाए भाई सिलेबस ओवरव्यू। नाउ यू गो डाउन एंड यू सी आपके पास यहाँ पे सिलेबस आ गए। दिस वाज द सिलेबस जो कि अक्टूबर नवंबर 25 तक, एंड देन दिस इज द सिलेबस जो कि मई जून 26 के अंदर यूज होगा। आप लोगों ने ये वाला यूज करना है। यार क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर, लेकिन क्वेश्चंस कैन बी सिमिलर। लाइक मैं ये बोलता हूँ इट्स नॉट स्पेसिमेन पेपर के रिलेटेड होगा। क्वेश्चंस आर टेस्टेड द वे दे आर इन स्पेसिमेन पेपर, राइट। तो जब कोई नया सिलेबस आता है तो उस वक्त आप लोग के स्पेसिमेन पेपर इज द ओनली प्रॉपर डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू कि यार एग्जाम किस तरीके का होगा। अब आप लोगों ने ये सिलेबस डॉक्यूमेंट देखना है। नाउ दिस एंड दिस, they are almost very similar, very minute difference in the 2026 and 2025 के syllabus में। so आप लोग को इतने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन सेम टू सेम वही चीज है। अब इसमें जो मैं आप लोग को बता रहा था, एक तो आपके पास ये बात आती है कि यू कैन कनेक्ट इट एक्सटर्नली। एक इसके बाद ये कि इट कैन ऑल्सो बी, इट कैन बी बिल्ट इन। अब built in क्या होता है? Like the mic which I am using right now is a built-in one. I have not connected any external mic. It's the MacBook's very own microphone. उसके ऊपर मैं बात करूँ ना, आपको आवाज आ रही है। अब I can connect an external mic using the socket। यहाँ पे जो मेरे पास वो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? जैक। I have that jack, right, for the headphone या फिर माइक्रोफोन में कनेक्ट कर सकते हो, but I have not connected any, right। जब मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं कोई बात करूं तो वो डायरेक्टली आपको जा रही, या मैं कोई एक्सटर्नली लगा सकता हूँ इफ आई नीड टू। लाइक आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग अ न्यू माइक्रोफोन, इंशाल्लाह आई डू हैव अ प्लान बाय द वे। तो वो मैं करूंगा तो आपको आवाज और क्लियर आएगी, राइट। इट वुड बी अ हायर क्वालिटी माइक्रोफोन। तो लेकिन दैट विल बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बिल्ट इन भी आता है, एक्सटर्नली होता है। काम ये होता है कि साउंड वेव टू इस फॉर्म में करते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। एंड बस आपके जहन में ये एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि यार इट बेसिकली वर्क्स इन दिस मैनर कि साउंड वेव्स को वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनते हैं एंड बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कंप्यूटर में स्टोर हो। लेकिन जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट इन द सिलेबस। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर हो तो अभी जब हम 2023 के इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे ना, आफ्टर 2023, 23, 24, 25, उसमें हम देख लेंगे हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमने इनके इनपुट या आउटपुट डिवाइस की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। अगर किसी की करनी हुई तो फिर तो हम डिस्कस कर लेंगे, फिर तो कोई मसले की बात नहीं। लेकिन इंशाल्लाह नहीं है कोई क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर ने सिलेबस में इस तरह बोले कि नहीं है। सही है, सो यू गेट दैट। अब इट्स 5:41, आई गेस लेट्स एंड अप द क्लास। इवन दो मैंने खत्म करना था, लाइक आई हैव कितने, आई हैव माउस रह गया, देन आई हैव स्कैनर्स and touch screens. So we have scanners, we have touch screens, and we have touch screens। लंबा है वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड फिर ये तो आउटपुट डिवाइसेस है। यस, सो वी हैव ऑलमोस्ट 3 मेन इनपुट डिवाइसेस लेफ्ट, जो कि इंशाल्लाह कल आउटपुट डिवाइस के साथ आई एम प्लानिंग, अल्लाह करे खैर से हो जाए। इट विल बी व्हाट, इट इज योर माउस, देन वी हैव योर टच स्क्रीन्स, एंड वी हैव व्हाट, एक और तीसरी चीज भी थी। तीसरी क्या चीज थी? इट वाज टच स्क्रीन्स एंड माउस एंड स्कैनर्स। सो स्कैनर्स, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सैफुल्लाह, पूछो, मैं चेक करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ पूछो। दिस इज पेपर 2। यस, आई हैव ओपन द पेपर। बिल्कुल। द ड्राइंग्स, विच ड्राइंग्स, ऑन व्हाट पेज? हाँ, ये जो ड्राइंग्स है ये हमारे कोर्स के अंदर है। दिस इज बेसिकली इन पेपर नंबर 2। इट्स पेपर नंबर 2। तो हमने अभी पेपर नंबर 2 किया ही नहीं है, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। ये पेपर 2 का चीजें हैं। आप स्पेसिमन पेपर ऊपर देखो, इट इज रिटन एज 2A। इट इज 2A वाला नहीं, 2A 2B इज। अगर आप पेज का सबसे पहला पेज खोले, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। हैव अ लुक एट दिस। It is written up here, paper number 2, algorithms, programming and logic. This is totally paper number 2। ये तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 1 महीना 1.5 महीने में हम ये सारा कवर अप करेंगे। एंड आप लोग नवंबर के एंड तक फुली प्रिपेयर्ड होंगे इंशाल्लाह। बाय नवंबर एंड हम ये क्वेश्चंस, ये पूरा पेपर हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि पेपर 2 कैसे करना है। जो आप लोग को जिस चीजों का पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली पेपर नंबर 1। अगर मैं अभी आप लोग को एक डेमो पेपर नंबर 1 खोल लेता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। लेट्स से ये अभी आपका पेपर नंबर 1 लोड हो रहा है, राइट। दिस इज पेपर नंबर 1 एज पर योर सिलेबस। आप नीचे जाओ, पढ़ो। कंप्लीट द बाइनरी रजिस्टर फॉर दीज 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स।
अब ये हमें क्या है, पार्ट ऑफ अ मैक एड्रेस ऊपर बताया हुआ कि दिस इज हेक्साडेसिमल, 97 इज अ हेक्साडेसिमल जिसको हमने बाइनरी में करना है, 5C को हमने बाइनरी में करना है. यू हैव डन दिस. Describe what is meant by MAC address. Again, something जो कि हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको हम आगे फिर भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने पढ़ लिया था कि MAC address is something which is used to uniquely identify your device. Remember, uses of hexadecimal में हमने इसको पढ़ा था, वो वाले क्वेश्चन आ गए. फिर give to other uses of hexadecimal, color codes, error codes, क्या कुछ हमने पढ़ा था, ये हो गया. बाइनरी के फिर नेगेटिव 10 नंबर्स क्यों नहीं पढ़ा, वी हैव स्टडीड दिस, राइट. लॉजिकल शिफ्ट पढ़ा हुआ है, देखो सब कुछ आपने पढ़ा, ये आप लोग क्यों नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा पैकेट. यार इतना हमने डिटेल में पढ़ा था, हेडर पढ़ा था, उसके बाद हमने ट्रेलर पढ़ा था, जो दरमियान में डेटा पैकेट होता है, डेटा के लिए हमने वो किया था, वो सब कुछ हमने पढ़ा था. सही है. नंबर ऑफ पैकेट्स, वो जो ऑड एंड इवन पैरिटी है वो एरर चेकिंग है, दैट इज नॉट डेटा पैकेट. सही है. जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनका पर्पस ये होता है आपको पता लगे क्या चीज है, वो इवन नंबर ऑड नंबर वाली जो चीज है, दोज आर इवन एंड ऑड पैरिटी. तो जब पैरिटी का क्वेश्चन आएगा उधर लिखेंगे दिस इज डेटा पैकेट, उसके ऊपर. नीचे आओ. कंप्रेशन का याद है हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन के क्या बेनिफिट्स है यार. डेटा ड्यूरेशन तो नहीं होती, लेस स्टोरेज, बिल्कुल लेस स्टोरेज होगी ना क्योंकि आप कंप्रेस कर ले. गिव 2 मेथड्स, याद है हमें क्या क्या पढ़ा था, लॉसलेस एंड लॉसी कंप्रेशन, उनके तरीके हमने पढ़े थे. RLI पढ़ा था, रन लेंथ एनकोडिंग, RLE सॉरी, वो कहानी यहाँ पे डिस्कस करनी है. फिर आप नीचे जाओ. अब ये देखो आप लोग ने ये नहीं पढ़ा, एक्सप्लेन व्हाई पैरेलल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड. क्यों. अब उसमें बोला कि इट हैज टू ट्रांसमिट द डेटा फॉर द न्यू वीडियोस टू द वेब सर्वर. इसका मतलब है कि आपने डेटा कंप्यूटर में से वेब सर्वर में भी डालना है, एंड शायद वेब सर्वर से कंप्यूटर में भी आपको डाउनलोड करना पड़ जाए. हाफ डुप्लेक्स, रिमेंबर हमने इसको इसलिए कर ले कि यार एक चीज हम अपलोड भी करें डाउनलोड भी करें, एक टाइम पे शायद हमें ना जरूरत हो तो हमने हाफ डुप्लेक्स के साथ चल जाए. हमने क्या कहते हैं पैरेलल क्यों यूज किया, क्योंकि मे बी आई नीड टू इंश्योर कि डेटा फास्ट हो जाए, मल्टीपल वाइड्स के थ्रू मल्टीपल चीजें हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह. यार ये पेपर अभी आप ना करो, या हमने तब करना है व्हेन वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6. अब ये देखो, नाउ यू कम टू दिस पॉइंट, डिनायल सर्विस. अब आपको ये समझ ही नहीं आएगी ये क्या है. व्हाई, दिस इज चैप्टर नंबर 5, ये भी चैप्टर नंबर 5 है. ये जब हम चैप्टर 5 करेंगे आप लोग को समझ आ जाएगी. फिर अब आप बैक टू दिस पार्ट अगेन, चैप्टर नंबर 5. आईपी के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े, आपको ये नहीं पता व्हाट इज HTTPS, व्हाट इज दिस, हमने कुछ नहीं पढ़ा. चैप्टर 5 है. अब दिस इज चैप्टर नंबर 3 गाइस, हैव अ लुक एट दिस. दिस इज चैप्टर नंबर 3, वन ह्यूमन आर्किटेक्चर सर्कल 3 कंपोनेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ CPU. CPU के अंदर क्या कुछ चीजें आती है, एक्यूमुलेटर आती है. सही है. आपके रैम रोम आती है, नहीं आती. PC आता है, याद करो, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट, आता है, बिल्कुल. फिर क्या आता है इन सब में, आप देखो आपको क्या, MAR वाला भाई एड्रेस और अपना TCS बंदा, MAR आता है, स्ट्रेट हमने सर्कल कर दिया. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट. रिमेंबर कंट्रोल यूनिट के ऊपर मैंने पूरी क्लास रखी हुई है कि किस तरह इट बेसिकली डज. देखो एग्जैक्टली, इट्स सो इजी. फिर स्टेट वन पर्पस ऑफ अ कोर इन अ CPU. हमने परसों एक बात पढ़ी थी कि कोर इज व्हाट, कोर इज बेसिकली स्पेसिफिक पार्ट, इट स्टोर्स, इट हैज इट्स ओन ALU एंड इट इज व्हाट डज इट डू, इट प्रोसेसेस डेटा. सो स्टेट वन पर्पस ऑफ अ कोर इन अ CPU में लिख दूंगा कि इट कंप्लीट्स और एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रक्शन, या जो भी हम मार्किंग स्कीम में पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा. फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर, याद है हमने इतनी क्लास लंबी ली थी, उसमें हमने क्या बोला था, व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्स क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. एक्सप्लेन हाउ द अपग्रेड फ्रॉम अ सिंगल कोर टू अ डुअल कोर CPU अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. आप ये बोलोगे इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस. व्हाई, 2 मार्क्स है ना, तो 2 पॉइंट्स लिखने. दूसरा पॉइंट में लिखूंगा कि इट डज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल या 2 इंस्ट्रक्शंस या मोर इंस्ट्रक्शंस एट वंस थैंक्स टू द डुअल कोर CPU. कितना आसान है भाई, इसमें क्या मुश्किल है. फिर दिस इज नाउ चैप्टर नंबर 4. अगेन आप लोग को नहीं समझ आएगी. चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 रोबोट्स का, चैप्टर नंबर 6. एंड ये अगेन वर्चुअल मेमोरी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे. दिस इज चैप्टर नंबर 3 का ही, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आफ्टर इनपुट आउटपुट हम ये करेंगे, आपका ये हो जाए. सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन गाइस, हमने ये पढ़ा नहीं था कि व्हाट इज टू कंट्रोल. रुको मैं दिखाता हूँ सम ऑफ द टर्म्स. अब ये एल्गोरिथम, साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हमने इतने चैप्टर नंबर 2 के एंड में पढ़ा था. बिल्कुल रेहान, बिल्कुल हमने ये चीजें पढ़ी थी कि यार डेटा बिफोर इंक्रिप्शन इज नोन एज व्हाट, प्लेन टेक्स्ट. टू स्क्रैम्बल द डेटा एंड इंक्रिप्शन, एल्गोरिथम व्हिच इज अ टाइप ऑफ की होगा, की इज यूज्ड. सही है. द डेटा आफ्टर इंक्रिप्शन इज नोन एज साइफर टेक्स्ट होगा. साइफर देखो साइफर है. इंक्रिप्शन प्रिवेंट्स द डेटा फ्रॉम बीइंग व्हाट, फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड. शायद कोई स्टूडेंट कर दे. बिल्कुल बिल्कुल सैफुल्ला, हमने क्या बोला था, हैकर अहमद भाई ने, हाँ सही है रेहान, यू कैन लीव. अहमद अगर हैक करना चाहे हैक कर ले, लेकिन उसको हैक करके समझ नहीं आनी तो अंडरस्टूड करना है.
SSL वाला सीन हमने डिस्कस किया था, ये हम बाद में फिर भी पढ़ेंगे. नो, देयर इज नथिंग इन चैप्टर 2 दैट नीड्स टू बी स्किप्ड. जो हमने क्लासेस में जो कुछ पढ़ा था ना, आप बुक में जो कुछ है वो आप पढ़ते जाओ. देयर इज नथिंग टू बी स्किप्ड इन चैप्टर नंबर 2. सिर्फ चैप्टर नंबर 3 इज समथिंग जिसके अंदर आपको मेरे ख्याल में से आपको चीजें थोड़ी सी इस तरह की वहां पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन है. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. 5:50 हो गए, लेकिन आप लोग को समझ आ गई. अल्लाह हाफिज. क्या इतना आसान चीज है. रुको यार रेहान, हाँ अहमद, अल्लाह हाफिज. यू कैन लीव में ये सैफुल्लाह को कंट्रोल यूनिट के वो दिखा दूं कि वेयर डिड वी स्टडी. सैफुल्लाह 2 मिनट में तुम्हें दिखा दूं कंट्रोल यूनिट के नोट्स. जस्ट अ मोमेंट.